Hello friends, I am Dr. Satkala. Today I am explaining a poem, The Patriot by Nizim Iskil. If we're talking about who is Nizim Iskil, Nizim Iskil, who is an Indian Jabis poet, playwright, as well as he was an art critic. Nizim Iskil, he also known as the father of post-independence Indian words in English. If we're talking about Nizim Iskil's most important works, The Night of the Scorpion, The Deadly Man, and some are others most important works. And Nizim Iskil was a shining star in Indian English literature. He was also awarded the Sahitya Akademi Cultural Award in 1983 as well as Padam Shri Award by the President of India in 1988. And if we're talking about this poem, The Patriot, this poem, The Patriot, here the narrator who is a patriot, and here the narrator who claims in this poem that we are following to foreign culture, foreign habits, and we are forgetting our own culture, own habits that are Indian culture. इस पोइम में निसिम इस्किल पेट्रियोट पोइम में कहते हैं कि हम भारतीय जो हमारी कल्चर है, भारतीय हमारी हैबिट्स हैं, उन सबको हम भूलते जा रहे हैं और हम क्या अपनाते जा रहे हैं, हम विदेशी फॉरेन जो हैबिट्स हैं, फॉरेन कल्चर्स हैं, उनको हम फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली ब्रिटिश कल्चर, इंग्लैंड के जो कल्चर हैं. तो ये पोइम पेट्रियोट जो है निज़िम इस्किल आफ्टर इंडिपेंडेंस लिखते हैं. दिस पोइम वॉज पब्लिश्ड इन 1977. ये पोइम 1977 आफ्टर इंडिपेंडेंस पब्लिश हुई है. दिस पोइम इज एन इरोनिकल पोइम बिकॉज द हेयर criticize the Indians of adopting foreign habits. Here the narrator of the poem who is a patriot, but patriotism is here the much big concept in this poem. Here the poet, the narrator who define that we should not follow the British culture, we should follow our own culture. But here the narrator who is himself is a hypocritic in this poem, and he focused more and more that we should follow non-violence, we should follow peace, and we should follow the idol of the peace and non-violence who is Mahatma Gandhi. We should follow our Indian leaders and in this, but he is not following to the Indian culture. Somewhere we found in the poem that the narrator who was saying that I am reading the English newspaper, The Times of India, and here the poet, the narrator who is ironic in this poem. तो इस पोइम में निसिम इस्किल दिखाने की कोशिश करता है कि हम चाह कर के भी हम अपनी जो इंडियन जो कल्चर्स हैं उनको हम क्या नहीं कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं. एक साइड हम ब्रिटिश जो न्यूज़पेपर है उसको हम रीड कर रहे हैं और दूसरी साइड हम कहते हैं कि हमें इंडियन जो कल्चर है उसको फॉलो करने चाहिए. और यहाँ पे नरेटर जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हाउ ही ट्राई टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू रीडिंग न्यूज़पेपर. और दूसरी तरफ जो है इस पोएम में हमारे इंडियन लीडर हैं उनके प्रति डिसरिस्पेक्ट दिखाया गया है और अदर जो फॉरेन जो लीडर हैं उनके प्रति रिस्पेक्ट दिखाया गया है. और हम जो है अपने इंडियन जो लीडर हैं, इंडियन कल्चर हैं, इंडियन हैबिट्स हैं, उनको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं. तो ये इस पोइम की जो आउटलाइन है दैट इज़ बेस्ड ऑन द आउटलाइंस ऑफ दिस दैट डिफरेंट ट्रेंड्स दैट इंडियंस अडॉप्टिंग फ्रॉम द फॉरेनर्स and we are defeating our Indian culture, our Indian tradition. So we should start our explanation of the poem. I am standing for peace and non-violence. Why world is fighting? Why all people of world are not following Mahatma Gandhi? I am simply not understanding. In these lines, the poet tried to say, this poem is narrating in the first person point of view. इस ये पोइम जो है वो फर्स्ट पर्सन नरेटर यहाँ पे है और नरेटर कौन है, वो इज़ अ पेट्रियट.
वो देशभक्त है, पेट्रियोटिक है, और इस पोइम में दिखाता है कि मैं किस प्रकार से आई एम स्टैंडिंग फॉर पीस एंड नॉन वायलेंस, कि मैं तो किसके लिए खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग विद पीस एंड नॉन वायलेंस। हियर पीस एंड नॉन वायलेंस मीन्स आई एम स्टैंडिंग विद महात्मा गांधी, आई एम फॉलोइंग टू महात्मा गांधी। मैं तो किसको फॉलो कर रहा हूँ, आई एम फॉलोइंग टू महात्मा गांधी, आई एम फॉलोइंग टू peace and non-violence. Why world is fighting and fighting? Here the word fighting used two times to focus on the word fighting, to emphasize the word, the meaning of the fighting. And why all people of world are not following Mahatma Gandhi? Here the narrator who is following the non-violence and who says that world is fighting and I am in confusion, are not following Mahatma Gandhi. Why all people, I am simply not understanding, कि मुझे सिंपली जो है समझ नहीं आ रहा, मीन्स आई एम इन कन्फ्यूजन, कि वाई इंडियन जो है डजेंट फॉलो द आइडल लीडर महात्मा गांधी. देयर इज ए रिपीटेशन ऑफ द वर्ड फाइटिंग दैट emphasize the meaning that I am standing with the peace and non-violence, but the world that is fighting, and why all people of the world that are not following Mahatma Gandhi, I am in confusion. कि महात्मा गांधी जो है वो आइडल रहे हैं पीस और नॉन वायलेंस के, तो ये बाकी जो वर्ल्ड के जो पीपल हैं वो क्यों नहीं इसको फॉलो कर रहे हैं, वो मेरे समझ से बाहर है. और यहाँ पे कहता है कि अनसेंट इंडियन विजडम इज 100% करप्ट, I should say even 200% correct, but modern generation is neglecting too much going for fashion and foreign thing. यहाँ पे फिर से कहते हैं कि यहाँ पे टॉकिंग अबाउट द इंडियन विजडम दैट वी आर फॉलोइंग टू फॉरेन हैबिट्स, फॉरेन कल्चर, बट आवर इंडियन विजडम इज नॉट सो मच लेस. उसको हम हल्के में नहीं ले सकते. इंडियन जो विजडम है वो क्या है, अनसेंट जो इंडियन विजडम है दैट इज करेक्ट, वो 100% करेक्ट नहीं है, बट इट इज़ 200% करेक्ट, वो 200% करेक्ट बताया है. यहाँ पे नरेटर जो है वो अपनी पेट्रियोटिज्म जो फीलिंग्स, इतना ज़्यादा पेट्रियोटिक उसमें फीलिंग्स में है कि वो 100% ही नहीं इंडियन विजडम को, अनसेंट इंडियन विजडम को कितना बताता है कि 200% उसको करेक्ट बताता है, क्योंकि वो देशभक्ति से बिल्कुल क्या है, ओतप्रोत है. एंड यहाँ पे एम्फेसिस जो फोकस है वो किस प्रकार से है कि इंडियन जो विजडम है वो ट्रू है, यहाँ पे नरेटर जो है वो यहाँ पे बताता है. लेकिन मॉडर्न जो पीपल है वो क्या कर रहे हैं, बट मॉडर्न जो जनरेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो है मॉडर्न जो जनरेशन है वो क्या कर रही है, दे वर निग्लेक्टिंग टू दिस and they are busy to following the fashion, foreign habits, foreign trends. वो किस में बिजी हैं, पूरी तरह से वो फॉरेन ट्रेंड्स जो हैं उनको अपना रहे हैं, फॉरेन थिंग्स को अपना रहे हैं, और वो किसको निगलेक्ट कर रहे हैं, वो इंडियन जो कल्चर है, इंडियन थिंग्स हैं, इंडियन ट्रेंड्स हैं, उन सबको छोड़ते जा रहे हैं, और वो अदर जो ट्रेंड्स हैं, फॉरेन जो ट्रेंड्स हैं, उनको वो क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं. तो इसमें पूरे में इंडियन के आइडल लीडर की बात की है, पीस की बात की है, नॉन वायलेंस की बात की है, और यहाँ पे महात्मा गांधी की बात की है, और अनसेंट विजडम की बात की है. दैट इज नॉट ओनली 100% करेक्ट, बट इट इज 200% करेक्ट. Or in the next stage, other day I am reading newspaper, every day I am reading Times of India to improve my English language. यहाँ पे जो रीडर है, नरेटर है, who was reading the Times of India English newspaper. Why he was reading the Indian English newspaper क्यों पढ़ रहा है, because he want to improve his English. वो अपनी English, every day I am reading Times of India, मैं डेली क्या पढ़ता हूँ, Times of India. Why he was reading to improve my English language. मैं इसको पढ़ता हूँ अपनी इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए. अदर डे की तरह आई एम रीडिंग, अन्य दिन की तरह, डेली की तरह आई वॉज रीडिंग द इंग्लिश न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया. तो उस न्यूज़पेपर में ही आल्सो रेड ए न्यूज़ दैट्स रिलेटेड टू डिसरिस्पेक्ट टू इंडियन लीडर. एक न्यूज़ ऐसी पढ़ता है जिसमें इंडियन जो लीडर है उसका क्या किया गया है, डिसरिस्पेक्ट किया गया है. How one Gunda fellow 3 stone at Indira Behan must be student unrest fellow. I am thinking friends, Romans, countrymen. I am saying to myself, lend me the ears. और यहाँ पे कहता है how one good.
कि किस प्रकार से द रीडर हेयर कॉमेंट्स अबाउट हाउ वी आर इंडल्जिंग इन हैबिट्स ऑफ फॉरेन कल्चर। यहाँ पे रीड्स कर रहा है इन इंग्लिश, जो न्यूज़पेपर रीड कर रहा है, और उसमें क्या रीड्स करता है कि किस प्रकार से फेलो जो है थ्रू अ स्टोन एट इंदिरा गांधी, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी, उसके ऊपर जो है वो एक पत्थर जो है, स्टोन जो है वो फेंकता है। तो यहाँ पे क्या है, इन हाइपोक्रेसी है, क्रिटिसाइज कर रहा है खुद को भी। यहाँ पे रीडर जो है, नरेटर जो है, वो खुद को भी क्रिटिसाइज कर रहा है किस प्रकार से मॉडर्न टाइम में एक इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई है कि हमें जो है वो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया, बिकॉज वी आर हैबिचुअल टू फॉरेन ट्रेंड्स एंड कंप्लीट जो इंडियंस हैं वो किसको फॉलो कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, ट्राई टू लर्न टू इंग्लिश लैंग्वेज। तो वो भी अपने आप को नहीं रोक पाता, चाहे कितना ही पेट्रोटिक है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए ही रीडिंग न्यूज़पेपर डेली, इंडियन टाइम्स ऑफ इंडिया। और वो स्टूडेंट्स कौन हो सकता है, मस्ट बी स्टूडेंट अनरस फेलो, आई एम थिंकिंग, वो कोई भी हो सकता है। द फेलो दैट थ्री स्टोन्स एट ऑन इंदिरा गांधी मस्ट बी स्टूडेंट्स, और फ्रेंड्स भी हो सकता है, रोमन्स कंट्रीमैन, आई एम सेइंग टू माई सेल्फ लैंड मी द ईयर्स। ये लाइन जो है विलियम शेक्सपियर की उससे ली गई है, और ये भी क्या है, फॉरेन लैंग्वेज से, ट्राई टू शो लैंड मी द ईयर्स। ये जो लाइन्स हैं वो किससे ली गई है, फॉरेन लैंग्वेज से ली गई है, जो विलियम शेक्सपियर ने अपने प्लेज में, ड्रामा में उन्होंने यूज की है। तो वो भी क्या है, लैंड मी द ईयर्स, दिस इज ऑल्सो यूज इरोनिक, एवरीथिंग इज कमिंग। और यहाँ पे क्या कहता है कि एक मोकरी है यहाँ पे लैंग्वेज को, और अप्रिशिएशन ऑफ द लैंग्वेज का किया गया है कि क्या आ रहा है, रीजनरेशन आ रहा है, रिमनरेशन आ रहा है, कॉन्ट्रासेप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे ये सब क्या है, रीजनरेशन, क्यों, एक स्टेरिलाइजेशन है पीपल का, कंट्रोल द पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, ये सब इसमें बताया है कि ये सब आ रहे हैं, एवरीथिंग इज कमिंग, हर एक कुछ आ रहा है, फॉरेन लैंग्वेज, थ्रू द फॉरेन लैंग्वेज ईच एंड एवरीथिंग इज कमिंग, लैंड मी द ईयर्स इन द everything is coming, regeneration, remuneration, contraception, be patiently brothers and sister। कि हमें क्या करना है, कि हमें पेशेंस में रहना है। वी इंडियंस वी शुड बी इन पेशेंस ब्रदर्स एंड सिस्टर, बिकॉज वी आर यूजिंग द, ये जो निसिम स्किल है वो दोनों जो है लैंग्वेज का एक कंपैरिजन भी दिखाता है, कल्चर दिखाता है कि किस प्रकार से लैंड में ईयर्स here in these lines that Nizam Iskil was using the foreign language, foreign phrases यूज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ब्रदर्स एंड सिस्टर, हम इंडियंस जो है हमारे कल्चर में ब्रदर्स एंड सिस्टर, हम किसी को संबोधित करते हैं, वी एड्रेस टू समवन लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर, पीएम को भी हम देखते हैं कि भाइयों और बहनों। तो इस तरीके से है कि बी पेशेंटली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू वॉन्ट वन ग्लास लस्सी। और यहाँ पे क्या कहता है, विद लिटिल साल्ट लवली ड्रिंक बेटर देन वाइन, यू वॉन्ट वन ग्लास लस्सी। और यहाँ पे इंडियंस को पेशेंस दे, और हमें बताता है कि देर इज़ द कंपैरिजन बिटवीन लस्सी एंड वाइन। एक फॉरेन और एक इंडियन जो कल्चर है उन दोनों में एक कंपैरिजन बताई है लस्सी और वाइन के बीच में। और लस्सी को क्या बताया है, इंडियन ड्रिंक बोला है, और वाइन क्या है, ये फॉरेन ड्रिंक है। एंड लस्सी जो है, यू वॉन्ट वन ग्लास लस्सी, वेरी गुड फॉर डाइजेशन, कि हमारे डाइजेशन के लिए इट इज़ इंक्लूडेड इन अवर कल्चर्स दैट वी थिंक इफ़ वी टेक वन ग्लास लस्सी इट इज़ गुड फॉर अवर डाइजेशन, ये हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है। एंड विद लिटिल साल्ट, उसमें थोड़ा सा हम साल्ट डाल देते हैं तो लवली कैसी ड्रिंक बन जाती है, बेटर देन वाइन, एंड लवली ड्रिंक बन जाती है। और वो हमें उसके साथ में फिर हमें किसकी ज़रूरत नहीं होती, वाइन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। तो हम अपने खाने के साथ में वन ग्लास लस्सी साल्ट डाल कर लेते हैं, तो इट बिकम है लवली ड्रिंक एंड इट इज़ helpful for our health, it is good for our digestion system. Note that I am ever tasting the wine, here the poet says that I am not tasting the wine, मैंने कभी भी जो है वो वाइन को टेस्ट नहीं किया। I am the total teetotaler, completely total, but I say wine is for the drunkards only। और यहाँ पे कहता है कि लस्सी जो है वो इंडियन, आई एम द टोटल टीटोटलर, मैं तो पूरी तरह से टीटोटलर हूँ, कंप्लीटली टोटल, बट आई से, लेकिन मैं कहता हूँ वाइन इज फॉर द ड्रंकर्ड्स ओनली। वाइन किसके लिए बना है, वाइन इज मीन फॉर द ड्रंकर्ड्स ओनली, द पोइट डजंट कंज्यूम इट, और पोइट जो है कभी भी उसको नहीं लेता है। व्हाट यू थिंक ऑफ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड पीस, यहाँ पे जो है पाकिस्तान बिहेविंग लाइक दिस, चाइना बिहेविंग लाइक दैट, इट इज मेकिंग मी रियली सैड, आई एम टेलिंग यू रियली मोस्ट हरासिंग मी।
यहाँ पे आप क्वेश्चन पहले जो है इंडियन और इन दोनों के कल्चर से कंपेयर कर रहा है, लस्सी के थ्रू, वाइन के थ्रू, और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन अराइज किया है। नरेटर जो है क्वेश्चन व्हाट द रीडर थिंक अबाउट द वर्ल्ड बिकेमिंग पीसफुल, कि हमारा जो वर्ल्ड है हाउ इट विल बिकेम पीसफुल, कि कैसे बने पीसफुल, इसके लिए रीडर को क्या थिंकिंग है, क्या आइडियाज़ हैं, व्हाट दे थिंक, रीडर क्या सोच रहे हैं इसके बारे में कि किस प्रकार से ये हाल पीसफुल हमारा वर्ल्ड जो है वो किस प्रकार से पीसफुल हो, इसके लिए हमें किसको फॉलो करना चाहिए, हमें कौन से वे जो है वो अपनाना चाहिए जिससे पीसफुल। जो इंडिया के जो बॉर्डर जो कंट्रीज हैं उनमें पाकिस्तान बिहेविंग लाइक दिस, पाकिस्तान की जो एक्टिविटीज होती हैं वो भी कौन सी होती हैं, फाइटिंग वाली होती हैं, पीसफुल नहीं होती, तो व्हाट वी शुड डू, चाइना बिहेविंग लाइक दैट। दूसरी साइड हमारे जो चाइना है वो भी कैसा है, वो भी हमेशा जो है प्रोवोकिंग अबाउट, हमेशा एक वॉर के लिए वो तैयार रहते हैं चाइना और पाकिस्तान। इट इज़ मेकिंग मी रियली सैड। और इन सब से मैं क्या हो जाता हूँ, इन सब के बारे में सोच करके हरासिंग में मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, हरासिंग करते हैं। आई एम टेलिंग यू हियर द नरेटर हु इज़ वेरी पेट्रियोटिक एंड ही एक्सप्रेस हिज फीलिंग, वो अपने फीलिंग शेयर कर रहा है कि पाकिस्तान इस तरह से बिहेव करता है, चाइना इस तरीके से बिहेव करता है कि हमेशा दिस कंट्री ऑलवेज रेडी फॉर वॉर, हमेशा वॉर के लिए तैयार रहते हैं या ऐसा कुछ करते रहते हैं जिससे कि वॉर को बढ़ावा मिले, ऐसा कोई काम नहीं होता जिससे पीसफुल रहे। तो ऐसा रीडर से एक क्वेश्चन करता है कि ऐसा कुछ आप सजेस्ट कीजिए जिससे कि वॉर की तरफ ना बढ़े। इससे मैं बहुत ज़्यादा सैड हो जाता हूँ। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, मैं बड़े ही ऑनेस्ट से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं जो है बहुत ज़्यादा किससे क्या हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, इससे मैं सैड हो जाता हूँ। और ये जो है हरासिंग मी, दिस इज़ डिस्टर्ब्ड मी, वेरी मच डिस्टर्ब्ड मी, ये मुझे बहुत ज़्यादा जो है परेशान करती है, डिस्टर्ब हो जाता हूँ मैं जब इन सब के बारे में ऐसे मैं सोचता हूँ। तो all men are brothers, no. In India also Gujaratis, Maharashtrians, Hindiwalas, all brothers, though some are having funny habits, still you tolerate me, I tolerate you. One day Ram Raja is surely coming. तो यहाँ पे अगेन जो है वो फिर से रीडर से क्वेश्चन करता है कि all we are brothers and sisters, हम सभी क्या हैं, ब्रदर्स हैं। क्या आप ऐसा नहीं मानते, ऑल मेन आर ब्रदर्स, कि सभी के सभी जो भी ह्यूमन बीइंग है ऑल आर ब्रदर्स, हम भी आपस में क्या हैं, कोई गुजरातीज है, कोई महाराष्ट्रियंस है, कोई हिंदी वालाज है, वी आर अडेप्टिंग टू फॉरेन ट्रेंड्स एंड हैबिट्स, वी आर ऑल वन, हम सब एक जैसे ही हैं। जो हम किसको फॉलो कर रहे हैं, हम फॉरेन हैबिट्स को फॉलो कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे को टोलरेट भी कर रहे हैं। द किंगडम ऑफ राम राज्य श्योरली विल कम वन डे, लेकिन राम राज्य जो है वो जो पहले राम राज्य था वो मेरा ऐसा मानना है कि श्योरली इट विल कम वन डे, कि ऑल मैन आर ब्रदर्स, वी आर ऑल मैन। क्वेश्चन करता है रीडर से कि क्या हम ऑल मैन आर ब्रदर्स, आप क्या मानते हो, नो हम सब भाई बहन नहीं हैं, वी आर ऑल इंडियंस आल्सो, गुजराती है, महाराष्ट्री है, अदर जो स्टेट के हैं, हिंदी बोलता है कोई, गुजराती बोलता है कोई, बंगाली बोलता है, तो वो सब क्या हैं, ऑल ब्रदर्स हैं। दो सम आर हैविंग फनी हैबिट्स, हम सब की, कोई गुजराती है, महाराष्ट्रियन है, केरला का है, बंगाली का है, उन सब की कुछ की क्या हो सकते हैं, फनी हैबिट्स हो सकती है। मीन्स वी आर ऑल फॉलोइंग द अडप्टिंग द फॉरेन हैबिट्स, हम सब नहीं हैं। स्टिल यू टोलरेट मी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वी आर टोलरेटिंग टू ईच अदर थ्रू दिस, हमने फॉरेन हैबिट्स को जो अडोप्ट की है उसके बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टोलरेट कर रहे हैं। आई टोलरेट यू, यू टोलरेट मी, कि मैं जो है आप सबको टोलरेट कर रहा हूँ पेट्रियोटिक होने के बावजूद, और आप सब जो है, मैं पेट्रियोटिक हूँ, आप फॉरेन हैबिट्स फॉलो कर रहे हो, तो आप भी क्या कर रहे हो, एक दूसरे को हम टोलरेट कर रहे हैं। वन डे राम राज्य इज श्योरली कम, और उसका ऐसा मानना है, नरेटर का ऐसा मान रहा है कि वन डे श्योर जो है वो राम राज्य जो है वो जरूर आएगा। You are going, but you will visit again anytime, any day. I am not believing in ceremony. Always I am enjoying your company. इसमें जो है
कि यहाँ पे उनको राम राज्य को फॉलो करते करते यहाँ पे वो बोलता है कि हम जो हैं हमने किसकी कंपनी को हम इंजॉय करते हैं, हमेशा से ही राम राज्य को, पीस नॉन वायलेंस, इन सब को हमने इंजॉय किया है। यू आर गोइंग कि एक बार हो सकता है कि जा रहा है ना, राम राज्य जो है वो एक बार चला गया है लेकिन वो फिर से आएगा। यू आर गोइंग बट यू विल विजिट अगेन, लेकिन आपको दोबारा जो है वो आना पड़ेगा, एनी टाइम एनी डे। आई एम नॉट बिलीविंग इन सेरेमनी, मैं बहुत ज़्यादा इन सेरेमनी और इन सब में विश्वास नहीं करता कि आज ये सेरेमनी है आज वो सेरेमनी। आई एम नॉट बिलीविंग इन सेरेमनी, मैं इन सब में विश्वास नहीं करता। ऑलवेज आई एम इंजॉइंग योर कंपनी, मैं तो हमेशा से, योर कंपनी मीन्स इंडियन जो कल्चर्स हैं, हम आजकल जो फॉरेन उनको ट्रेंड को फॉलो करते हुए आज मैरिज एनिवर्सरी है, आज ये एनिवर्सरी है, तो ये इन सब सेरेमनी को, बहुत ज़्यादा सेरेमनी जो है उनको हम फॉलो ना। तो यहाँ पे जो ओपोनेंट जो है, हियरिंग ऑल दिस सीम्स टू बी एन इंटरेस्टेड है। नरेटर यहाँ पे कहता है विल विजिट वन डे दैट ही enjoys द कंपनी। द लाइन आई एम नॉट बिलीविंग इन सेरेमनी यहाँ पे किसको कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, राम राज्य को कॉन्ट्रास्ट कर रहा है कि श्योरली राम राज्य जो है एक दिन आएगा। यहाँ पे उसका बिलीव्स है, उसका विश्वास है कि किंगडम ऑफ राम विल कम वन डे व्हेन ही सेज ही डजंट बिलीव इन सेरेमनी, कि वो इसमें नहीं विश्वास करता कि कोई बहुत बड़ा ओकेजन होगा, कोई सेरेमनी होगी तभी ऐसा होगा। लेकिन मैं तो हमेशा किसकी कंपनी को एंजॉय करता हूँ, मैं राम राज्य की कंपनी जो है उसको मैं एंजॉय करता हूँ। तो ये पोइम जो है वो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, इट्स इन सिंपल लैंग्वेज। पोइम जो है सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है और लैंग्वेज जो है इसकी इंडियन जो लैंग्वेज है, इंग्लिश स्पीकिंग जो इंडियंस हैं उनके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये पोइम जो है वो लिखी गई है। और ये कहीं ना कहीं पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है उसको टच करती हैं और इंडियंस के जो हैबिट्स को बताई है कि जिस प्रकार से इंडिया जो है गॉट इंडिपेंडेंस आफ्टर दैट दे बिकेम हैबिटेड टू फॉरेन। वो फॉरेन के इतने ज़्यादा, फॉरेन हैबिट्स के इतने ज़्यादा हैबिचुअल हो गए हैं कि वो उनको फॉलो करते जा रहे हैं और हम अपने इंडियन जो ट्रेडिशन है, इंडियन जो कल्चर है उसको हम छोड़ते जा रहे हैं। तो मे यू लाइक इट, आपको शायद ये पोइम पसंद आई होगी। इट इज़ बेस्ड ऑन पेट्रियोटिक, ये देशभक्ति के ऊपर है और हमें भी जो है हमारे जो इंडियन कल्चर है उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमें फॉलो करना चाहिए। एटलीस्ट वी शुड वेल अवेयर अबाउट कल्चर्स, हमें अपनी इंडियन कल्चर्स के बारे में एटलीस्ट पता तो होने चाहिए कि हमारी कौन कौन सी कल्चर है, हमारी क्या हैबिट्स रही हैं, हमारे पास विजडम जो है, एंसेंट हमारी विजडम है वो वेद पुराण और ये सब ये कोई कम नहीं है। तो वी शुड फोकस ऑन और वी शुड फॉलो आवर इंडियन कल्चर, हमें फॉलो करनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि हमें लैंग्वेज सीखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, हमें फ्रेंच भी सीखनी चाहिए, इंग्लिश भी सीखनी चाहिए। लैंग्वेज से हम क्या होते हैं, हमारे जो आइडियाज़, हमारी थिंकिंग जो है वो ब्रॉड होती है। ऐसा नहीं है कि हमें संकुचित रहना चाहिए कि हम तो हिंदी भाषी हैं, हमें हिंदी ही सीखनी है। नो, वी शुड नो मोर एंड मोर लैंग्वेजेज, जिससे हमें ज़्यादा नॉलेज मिलता है। लेकिन हम कल्चर कौन से फॉलो करते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें अपनी इंडियन कल्चर को फॉलो करना चाहिए। हम नॉलेज जो है वो कहीं से भी कैसे भी गेन कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने कल्चर को एटलीस्ट हमें अपने कल्चर के बारे में अवेयर होना चाहिए कि ये हमारे इंडियन कल्चर है। सो अगर आपको ये पोइम पसंद आए